Dear students, now I am going to explain the further part of the chapter Luncheon. Now, the narrator asked, "What would you like?" I asked, "Hospitable still." Now, the narrator was hospitable, means he was generous towards the guest, but he was not exactly enthusiastic. Effusive means enthusiastic. Now she gave me a bright and amicable flash of her white teeth. Now the lady gave a friendly smile. Amicable means friendly smile with her teeth. Now my doctor won't let me drink anything but champagne. She said, the lady said that my doctor has said that she would take only champagne. I fancy I turned a trifle pale. Now the narrator turned a trifle pale means a little pale. थोड़ा सा पीला पड़ने लगा. I ordered half a bottle. He ordered half a bottle. I mentioned casually that my doctor has had absolutely forbidden me to drink champagne. Narrator ने excuse बनाया, बहाना बनाया that he did not drink champagne ever. His doctor has forbidden him. What are you going to drink then? Now she said, "What are you going to drink?" "Water." She ate the caviar, she ate the salmon, she talked gaily of art and literature. Now the lady ate caviar, very expensive dish, salmon. But I wondered what the bill would come to. Now the narrator was only thinking about the bill. When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. Now mutton chop of the narrator arrived. Mutton chop order की थी narrator ने. I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon. You eat a heavy lunch. I'm sure it's a mistake. The lady is saying it's a mistake. Why don't you follow my example? तुम मेरा example क्यों नहीं follow करते? Just eat one thing. सिर्फ एक चीज़ खाया करो. I'm sure you would feel ever so much better for it. You would feel better. I'm only going to eat one thing, I said as the waiter came again. Now narrator ने कहा that he is going to eat one thing. She waved him aside with an airy gesture. तभी वेटर को लेडी ने एक सिग्नल किया. "नो नो, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन." एंड शी ऑल्सो सेड, लेडी ने कहा कि वो ज़्यादा लंच में कुछ नहीं खाती. "जस्ट अ बाइट, आई नेवर वॉन्ट मोर देन दैट." एक ही बाइट लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी. अब किस चीज़ की बाइट लेना चाहती है? "एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज़ फॉर कन्वर्जेशन." नाउ शी सेड दैट शी वुड ईट दैट थिंग जस्ट फॉर कन्वर्जेशन. बातचीत के लिए लेगी ताकि हम ज़्यादा बात कर सकें. "आई कुड नॉट पॉसिबली ईट anything more unless they had some of those giant asparagus." Now what is this asparagus? This is also a costly dish. Asparagus, a plant whose shoots are used as a vegetable. एक प्लांट होता है जिसकी शूट्स वेजिटेबल के तौर पे यूज़ होते हैं, टाइप ऑफ वेजिटेबल, बट दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव. नाउ शी सेड दैट आई डोंट वॉन्ट टू लीव दिस पेरिस सिटी without eating asparagus. My heart sank. Now the narrator was feeling nervous. I had seen them in the shops. Shows में देखे तो narrator ने. I knew they were horribly expensive. मुझे पता था काफ़ी महंगे हैं. My mouth had often watered at them. मतलब उनकी साइड को उनको देखकर उसके माउथ में वाटर आता था. बट ही डिड नॉट ईट दैम. उसने कभी खाए नहीं थी नरेटर ने. "मैडम वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जेंट एस्पेरागस." जेंट मीन्स वेरी बिग. नाउ नरेटर ने वेटर से कहा, मैडम चाहती है एस्पेरागस हैं आपके पास? "येस, आई ट्राइड विद माई माइट टू विल हिम टू से नो." मैंने पूरी कोशिश की कि वेटर मना कर दे. अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस, बट there was a happy smile on the narrator's face. He assured me that they had some so large, so splendid, so tender and marvel. बट उसने कहा कि उनके पास बहुत बड़े बड़े एस्परागस हैं. एंड स्प्लेंडिड मीन्स मैग्निफिशेंट, शानदार जिसे हम कहते हैं. टेंडर मीन्स सॉफ्ट. एंड मार्वल, सेम मीनिंग है. स्प्लेंडिड, मार्वल, मैग्निफिशेंट. आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री. माई गेस्ट साइट. माई गेस्ट, मेरे गेस्ट ने बड़ी सी सांस लेते हुए कहा, मैं ज़्यादा हंग्री नहीं हूँ. बट इफ़ यू इंसिस्ट, बट तुम इंसिस्ट करते हो, नरेटर को कहा, आई डोंट माइंड हैविंग some of them, some of the asparagus. I ordered them. Aren't you going to have any? तुम नहीं खाओगे? No, I never eat asparagus. Narrator ने कहा, मैं नहीं खाता. I know there are people. Now lady said
that I know there are some people who don't like them, उन्हें पसंद नहीं होते. The fact is you ruin your palate by all the meat you eat. Now उसने लेडी ने कहा कि तुम्हें एस्परेगस इसलिए नहीं खाने, आई थिंक बिकॉज तुमने अपनी टेस्ट को, सेंस ऑफ टेस्ट, पैलेट मीन्स सेंस ऑफ टेस्ट को ख़त्म कर लिया तुमने जो मटन चॉप खाई है. नाउ वी वेटेड फॉर द एस्परेगस टू बी कुकड. हमने वेट किया एस्परेगस कुक को. पैनिक सीज्ड मी. पैनिक मीन्स फियर कॉट हिम. नरेटर को फियर पकड़ने लगे. इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन. नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट. अब ये क्वेश्चन नहीं था कि कितने पैसे बचेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल. अब ये क्वेश्चन था दैट he would be able to pay the bill or not. It would be mortifying to find myself 10 francs short. कितना mortifying लगेगा. mortifying means होता है humiliating. कितनी शर्म फील होगी if I don't find enough money with me to pay the bill and obliged to borrow from my guest. और मुझे अपने गेस्ट से अगर पैसे बोरो करने पड़े. I could not bring myself to do that. मैं ऐसा नहीं कर सकता था. I knew exactly how much I had. मेरे को पता था मेरे पास कितने पैसे हैं. And if the bill came to more, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been picked. अब उसने एक वे सोचा that अगर बिल ज़्यादा आ जाता है मे बी, then what he would do, he would say that his pocket had been picked, कि उसके पर्स को किसी ने चोरी कर लिया है. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. तब एक ही तरीका होगा कि मेरी वॉच को मैं यहाँ छोड़ जाऊँगा और यही कहूँगा कि दैट आई वुड कम बैक एंड पे लेटर. मैं बाद में पैसे पे कर दूँगा. द एस्परेगस अपीयर्ड. एस्परेगस आ गए. दे वर एनॉर्मस बिग. एनॉर्मस मीन्स बिग. सक्यूलेंट जूसी. सक्यूलेंट का मीनिंग होता है जूसी. एपेटाइजिंग हंगर इंक्रीज करने वाले. द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर. उसके ऊपर जो बटर लगा हुआ था एस्परेगस पे टिकल्ड माई नोस्ट्रिल्स. मीन्स नरेटर को भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा था. बट ऑल आई कुड डू वॉज टू, बट वो क्या कर सकता था सिर्फ अपने गेस्ट को थ्रस्ट दैम डाउन इन लार्ज माउथफुल्स. वो देख सकता था कि किस तरह से अपने मुंह में डाल रही थी. एट लास्ट शी फिनिश्ड. एट लास्ट उसने खा लिया एस्परेगस. कॉफ़ी आई सेट. मैंने कहा कॉफ़ी. यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी. लेडी ने आइसक्रीम और कॉफ़ी ऑर्डर की. आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ सो आई ऑर्डर्ड. अब मैंने हर चीज़ की केयर करनी बंद कर दी, इसलिए मैंने एटलीस्ट अपने लिए कॉफ़ी तो ऑर्डर कर ही दी. एंड लेडी के लिए कॉफ़ी एंड आइसक्रीम. यू नो देर इज़ वन थिंग आई थोरोली बिलीव इन. शी सैड एज शी एट आइसक्रीम. जब वो आइसक्रीम खा रही थी तो उसने कहा मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ, दैट वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम ए मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटल मोर. हर किसी को खाना खाते हुए उठना चाहिए आफ्टर लंच और एनी मील यू टेक, दैट यू कैन ईट मोर, कि तुम और भी ज़्यादा खा सकते हो. मीन्स थोड़ा खाना चाहिए. द लेडी वॉज सेइंग. नाउ आर यू स्टिल हंग्री आई आस्क्ड फेंटली. नरेटर ने पूछा वीकली. फेंटली मीन्स बेहोश सा होते हुए, वीकली बड़ा कमजोरी से. आर यू स्टिल हंग्री. अभी भी तुम हंग्री हो. ओ नो आई एम नॉट हंग्री. मैं हंग्री नहीं हूँ. यू सी आई डोंट ईट लंचियन. आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी. तुमने देखा होगा कि मैं लंच नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ एक कप ऑफ कॉफ़ी लूँगी in the morning and then dinner. But I never eat more than one thing for lunch. अगर लेती भी हूँ लंच में तो एक ही चीज़ लेती हूँ. I was speaking for you. मैं तुम्हारे लिए पूछ रही थी. Oh I see. Now narrator ने कहा oh I see it means in this page you have seen that the lady has eaten so many things. Asparagus, first salmon, caviar, then she took champagne. She is eating so many dishes. Now she is even saying that she eats only one thing in a lunch. The last page I will explain in next video.